हमने ऑलरेडी कवर किए थे वी लुकअप एंड एच लुकअप फॉर्मूला, बट मेरा सिस्टम ना होने के कारण आई एम नॉट एबल टू शो यू PDF at that time. So there is the PDF for your VLOOKUP and HLOOKUP function. So till other students will join the class, we will review this PDF. Okay. So VLOOKUP function is vertical lookup, as I told you already. So the VLOOKUP function in Excel is a powerful tool that can be used to search for a value in a table and return a corresponding value from another column in the same row. It is commonly used to look up data in large spreadsheet or databases. Then syntax for VLOOKUP function. So this is the syntax, and these 5 are the arguments for your VLOOKUP function. First is lookup value. So what is lookup value? Lookup value is the value you want to search for in the first column of the table array. Then table array. Table array is the range of cells that contains the table you want to search. This range must include both the column you want to search and the column you want to return data. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एरे आपका क्या होता है। एरे आपका, अगर आपको एरे, अगर आपका आर्गुमेंट है तो उसमें रिक्वायरमेंट क्या होगी आपकी, कि आपके पास 2 कॉलम्स यू हैव मस्ट। वन इज योर कॉमन कॉलम एंड अनदर वन इज योर रिटर्न कॉलम। रिटर्न कॉलम जिसके जो आप चाहते हैं रिटर्न में, तो आपका रिटर्न डाटा भी वहां पर क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। दैट इज योर एरे। then column index number is the number of the column in the table array that contain the value you want to return. For example, if you have 5 column in your table and you want data from third column, so type 3 in your column index number. The first column is numbered 1, the second column is number 2, and so on. Then last argument is range lookup. Range lookup is an optional argument that specifies whether you want an exact match or an approximate match. If you omit this argument, Excel will assume that you want an exact match. If you not fill this last argument anytime, it will automatically give you exact match. Okay, like that. Then we have HLOOKUP. HLOOKUP functions arguments आपको यहाँ पर शो किए हैं. HLOOKUP is your horizontal lookup. Definition will be same for HLOOKUP and VLOOKUP. There is only one difference between HLOOKUP is for horizontal data and VLOOKUP is for vertical data. Same arguments are there. Only difference is there column index number in your VLOOKUP and row index number in your HLOOKUP, because in your HLOOKUP data in rows rather than column. Otherwise both are same. Okay, now we will come in our sheet again. Okay, so we will start our next module now. Ithina there, Rajan, Saurabh, Nikhil. Okay, I think we are good to go now. So we are in sheet 2, right? लास्ट क्लास में हमने क्या लर्न किया था, हमने 6 to 7 डेफिनेशंस देखी थी और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन देखी थी कि VLOOKUP अप्लाई कैसे करना है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ VLOOKUP एंड व्हाट इज द यूज ऑफ HLOOKUP, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन VLOOKUP एंड HLOOKUP, एंड व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ VLOOKUP, व्हाई we have need to go on some advanced function. So till here everything is clear to every student? Yes, Saurabh, Ithina, Nikhil, everything is clear to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now we are on sheet number 2 for our lookup formulas. So last class में हमने बताया था कि VLOOKUP का जो limitation था, what is the limitation of your VLOOKUP formula थी ना? Yes, what is the limitation of VLOOKUP formula? Why we will move Sir, towards? Yes, this is forward. It can it only applicable in forward ones. Sir. We will have yes, data it will be working for forward data, not forward. for backward data.
Yes. But if you are able to see in our master table, that is in blue format, our common column is in sorry, our common column is in K column, but our searching columns, our array column in backward direction, right? So in this situation, VLOOKUP formula is not work. So for that we have formula index and match. Last class में मैंने आपको बताया था कि index and match is not a formula. They are two formulas. One is index, one is match. Both are working separately as well as, but mostly we will use combination of both the formulas. Why we will use combination, I will tell you. Index formula, index is like a GPS system. Index is like a GPS system. In GPS, if we mention longitude value and latitude value, it gives me location on earth, right? अगर मैं आपको कहूं that is your earth, your IJK data will be your earth. And if you are looking for anything, so first of all, what is your requirement? You have need to put longitude value and latitude value in GPS system. जीपीएस में अगर हमें कुछ सर्च करना है तो हमें वहां पर उस अर्थ का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वैल्यू देना होगा, राइट? उसी के बिहाफ पे हमारा क्या आएगा, एक वैल्यू निकल के आएगा। बट लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वैल्यू आपको क्या करना होगा, मैन्युअली पुट करना होगा। उसी के बिहाफ पे आपका क्या होगा, वैल्यू मिलेगा। तो जो लॉन्गिट्यूड, तो दैट इज द यूज ऑफ योर इंडेक्स फॉर्मूला, कि आपको वैल्यू तो वो देगा बट क्या लेगा बदले में, लॉन्गिट्यूड वैल्यू एंड लैटिट्यूड वैल्यू। तो हमेशा अगर इफ यू हैव मिलियंस और ट्रिलियंस डाटा, तो आप वहां पे हमेशा सर्च नहीं कर सकते कि वेयर योर डाटा इज अवेलेबल इन विच रो। यस, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन हम यूज करते हैं, मैच फंक्शन। मैच फंक्शन हमको क्या देता है, हमें वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वैल्यू हमें कहां से मिलती है, मैच फंक्शन की हेल्प से। सो दैट्स व्हाई we will use combination of both the formulas. I will show you once, just a minute. First of all, with the help of index, we find location, we find value of cell. अगर मैंने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वैल्यू दे दिया तो वो क्या करेगा, लोकेशन, जैसे कि गुरुग्राम का अगर मैंने दिया तो वो मुझे कहाँ पे प्लेस कर देगा, गुरुग्राम की लोकेशन में। सो दैट इज द वर्क ऑफ योर इंडेक्स फंक्शन। सो इंडेक्स एरे, सबसे पहले एरे। तो एरे आपका क्या होता है, जहां पर आपका रिजल्ट अवेलेबल होता है। तो मेरा लुकअप वैल्यू ये है, तो मेरा इसके लिए एरे कहां पर है, के कॉलम इज माय एरे फॉर दैट। रो नंबर, तो रो नंबर आपसे वो क्या पूछ रहा है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वैल्यू। लॉन्गिट्यूड ले सकते हैं या लैटिट्यूड वैल्यू ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये टफ टास्क है कि इफ आई एम सर्चिंग फॉर दिस आईडी, सो मुझे काउंट करना होगा। जब मुझे यहाँ पे पुट करना होगा तब मुझे क्या मिलेगा, इसका वैल्यू मिलेगा। आई टेक वन रैंडम वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल आई टेक 7। कॉलम नंबर, कॉलम नंबर क्या है, I want category, so my column number will be 1. Hit on enter. तो आपने क्या लिया, के कॉलम का 7 रो लिया। तो के कॉलम स्टार्ट यहां से 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 पे आपको क्या शो कर रहा है, ये 760। ये 760 किस रो का डाटा है, आपकी 7th रो का डाटा है। तो आपको क्या मिल गया, वहां का उस लोकेशन का वैल्यू मिल गया, जिस लोकेशन का लॉन्गिट्यूड वैल्यू आपने पुट किया। ओके, अब मैच का देखते हैं। तो इसमें आपको कहां पर टफ लगा, कौन सा एरिया टफ लगा, जो हमने मैनुअली पुट किया। बिकॉज अभी अगर हमारे पास डाटा कम है तो हम चेक करके बता सकते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर दिस आईडी, बट व्हेन वी हैव डाटा इन ह्यूज डाटा, so at that time we are not able to search manually for any specific or particular id. So for that we have function that is match,
So match lookup value. This is our lookup value. Lookup array. Lookup array is our product ID. I want exact match, ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर. सो क्या है, इस आईडी का पोजीशन लॉन्गिट्यूड कितना वैल्यू है? व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड वैल्यू ऑफ दिस आईडी? 3, रो नंबर 3. सो 798. सो 798 start from first row, 1 2 3. Third row will be your longitude value for this your particular product ID. So use of index and match is clear to everyone, or any confusion? Yes, anyone? Okay, clear? Yes, ma'am. Okay, so that is the use of index and match function. So delete it. Now I will show you how we are able to use combination of both the formulas. So index formula में हमें प्रॉब्लम कहाँ हुई कि हम हमेशा क्या नहीं दे सकते, लॉन्गिट्यूड वैल्यू मैनुअली पुट नहीं कर सकते. बट मैच फॉर्मूला हमें क्या दे सकता है, लॉन्गिट्यूड वैल्यू दे सकता है ऑटोमेटिकली. सो एरे. So this time I want category and subcategory as well. So for that I will select that array. Row number. For row number this time I will use match function, क्योंकि मैच फंक्शन हमें क्या दे रहा है, हमें लॉन्गिट्यूड वैल्यू दे रहा है. तो रो नंबर मैं किसकी हेल्प से यहाँ पे फाइंड आउट करूंगी? विद द हेल्प ऑफ मैच फंक्शन. दैट इज द यूज ऑफ योर मैच फंक्शन. लुकअप वैल्यू, मुझे किसका लॉन्गिट्यूड वैल्यू चाहिए? इस आईडी का. फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट आईडी ना लेके यहाँ पर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का डाटा अवेलेबल है, तो यहाँ पे गुरुग्राम, झज्जर ऐसे करके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का अवेलेबल है. तो मुझे गुरुग्राम का लॉन्गिट्यूड वैल्यू चाहिए, क्योंकि मैं उसका वैल्यू सर्च कर रही हूँ कि गुरुग्राम में इस पोजीशन पर क्या अवेलेबल है. तो मैंने यहाँ पर पूरा गुरुग्राम का एरिया लिया. दैट इज माई एरे, गुरुग्राम एरे. फिर मैंने वहां पर कुछ पर्टिकुलर मेरे पास लॉन्गिट्यूड वैल्यू होगी जिसमें मुझे सर्च करना है कि इस एरिया के अंदर कौन सा सोसाइटी अवेलेबल है, कौन सा सेक्टर अवेलेबल है. सो फॉर दैट मैच फंक्शन वी विल यूज lookup array. Lookup array is our k column for this lookup value, and I want exact match. I want category, so 1 bracket close, hit on enter. So इस id इस पर्टिकुलर एरिया में क्या अवेलेबल है? फर्नीचर का शॉप अवेलेबल है 798. तो 798 पे अगर आप सर्च करो तो क्या है आपकी कैटेगरी? वी हैव फर्नीचर. इफ आई डबल क्लिक ऑन दिस स्मॉल प्लस आइकन, so it will give me some category for every product id, but in second row it will give me has any error. Why has any? Has any means that id is not available in your master table. Okay, now I want subcategory also, but tell me one thing. First of all let me know index and match function is clear. इंडेक्स का आपको यूज पता चल गया कि इंडेक्स इज योर जीपीएस सिस्टम. उसमें आपको क्या करना होगा, आपको उसमें वैल्यू पुट करनी होगी. जो जिस वैल्यू के लिए आप, जिस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आप सर्च कर रहे हैं, आपको उसका नंबर पुट करना होगा, तभी वो आपको क्या देगा, उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, पर्टिकुलर डिजिट के लिए आपको डाटा शो करेगा. अब वो आपको डिजिट कहाँ से मिलेगी? फ्रॉम मैच फॉर्मूला यू विल गेट इट. With the help of match formula you are able to get this number. Now tell me one thing. When you have 20 numbers of column in a table, you have 20 number of column and you want to extract some information from 20 columns. क्या है आपका रिक्वायरमेंट? एक टेबल है, टेबल के अंदर 20 कॉलम्स अवेलेबल हैं, और आपका रिक्वायरमेंट है कि जो आपकी डाटा टेबल है वो बिल्कुल क्या है, नील है. उसमें आपको सारा का सारा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ लुकअप फॉर्मूला. बट सी 20 कॉलम्स, तो क्या आप बार बार
ये फॉर्मूलाज यूज करेंगे। अगर आपको 20 कॉलम से डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, सो यू हैव नीड टू यूज 20 लुकअप फॉर्मूलाज फॉर दैट, यस और नो? No, ma'am. No. Then what is your approach for that? If you are not using 20 lookup formulas, so what is your approach for that? How you will get data from these 20 columns? Any idea? In this formula also we get a single column result. No? So how we get multiple column result? We will get for data from multiple columns with the help of single formula, but for that we have need to use reference concept at that time. मैंने आपको लास्ट रेफरेंस क्लास में बोला था कि रेफरेंस कॉन्सेप्ट इज वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट। सो रेफरेंस कॉन्सेप्ट का मैंने बताया था कि जब हम एडवांस फॉर्मूलाज करेंगे एक्सेल के अंदर, जब हमें उसका पता चलेगा कि वेयर वी हैव नीड टू यूज दिस रेफरेंस कॉन्सेप्ट। सो इन दिस लुकअप फॉर्मूलाज वी हैव नीड to use reference concept if we want to extract multiple information but from single formula. So if I want to extract subcategory formula also, so what you have need to make change, see ik, if I drag it in D column, if I drag this formula in D column, so जो I K का रेफरेंस है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? Can anyone have any idea? Any suggestion for that? Yes, I K ma'am. का भी डॉलर में रेफरेंस J से J to L, yes? अगर मैं इसको ड्रैग करूं सी कॉलम से डी कॉलम में, तो मेरे आर्गुमेंट का रेफरेंस भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। आई से आई टू के से चेंज होके वो कन्वर्ट हो जाएगा जे टू एल में। यस, इट इज क्लियर? yes, यस और नो? ma'am. It's ओके, shifting गुड। to what next? यस, रेफरेंस अगर आपने कोई फॉर्मूला यूज किया है, आप उस फॉर्मूले को ड्रैग करते हो हॉरिजॉन्टली, अपवर्ड, वर्टिकली, डाउनवर्ड, तो आपके उस आर्गुमेंट का भी डायरेक्शन, आपका आर्गुमेंट का जो रेफरेंस है वो क्या होता है? चेंज होता है। इतना सबको क्लियर है? रेफरेंस का क्लास हमने डिटेल से किया था। यस, तो आपका आई के रेफरेंस चेंज हो जाएगा जे और एल में, बट अवर डाटा इज इन I to K column. We do not want to change our reference. If we do not want to change our reference, so what approach we have need to follow? We have to need to fix it. fix Okay. How we will freeze it? With the help of F. dollar. Yes, function key or just a minute. F4. F4 key. With the help of F4 key, we will freeze it. So now if I drag it in D column, so my reference will be same, I to K. Yes, for match. अब मैच कन्वर्ट होके, मैच में मेरा फर्स्ट आर्गुमेंट है B3 बिकॉज माई लुकअप वैल्यू इज B3, वो कन्वर्ट होके इफ आई ड्रैग इट इन C3, sorry D3, so it will be convert into C3 rather than B3, right? So I make it freeze also. B3 will be freeze, but अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? B3 को कंप्लीट फ्रीज नहीं करना है, बिकॉज जब हम डाउनवर्ड इसको ड्रैग करेंगे तो उसका प्रोडक्ट आईडी क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए, ताकि वो हर एक पर्टिकुलर, हर एक प्रोडक्ट आईडी के लिए क्या कर सके? सिलेक्ट कर सके। अदरवाइज क्या होगा? वो हमेशा किसको ही लेगा? B3 फिक्स हो जाएगा। हमें यहाँ पर रो को फ्रीज नहीं करना है। सो रिमूव दिस डॉलर बिफोर यूर रो। ओके, सिर्फ हमने क्या किया? कॉलम को फ्रीज किया है, रो को फ्रीज नहीं किया है, बिकॉज रो अगर हमारा चेंज होगा बट आवर कॉलम विल बी सेम। ओके, देन के भी कन्वर्ट हो जाएगा एल में, सो के को भी हम फ्रीज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ डॉलर। देन हिट ऑन एंटर। नाउ इफ आई ड्रैग माई कॉलम, ड्रैग माई फॉर्मूलास, what it will give me? It will give me furniture. Why? Because हमने यहाँ पर क्या किया है? कॉलम में हमने क्या किया है?
वन यूज किया है, तो ये कहां से डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है? फ्रॉम फर्स्ट कॉलम। यस, so if I want data from multiple columns, so we will use one more match function. Yes or no? कि उसको भी वो जैसे रो नंबर ऑटोमेटिकली वो ले रहा है, वैसे ही मैच फंक्शन क्या करेगा, कॉलम नंबर भी ऑटोमेटिकली लेगा. सो वी विल यूज वन मोर मैच फंक्शन फॉर कॉलम. सो लुकअप वैल्यू इज अवर कैटेगरी. इसको हम फ्रीज नहीं करेंगे, ताकि मैं इसको ड्रैग करूं जब डी कॉलम में, तो ये C2 से कन्वर्ट हो जाए किसमें, D2 में, राइट? तो वी विल नॉट फ्रीज इट C2. If you want to freeze row, so you will freeze the row. I will freeze my row because my data is in second row for C2 or D2. Then lookup array. For lookup array, we have this data I2 से लेके K2 का. We will freeze it also. Then we want exact match and bracket close and कॉलम नंबर के लिए ऑलरेडी हमने क्या किया है, मैच फंक्शन का यूज किया है. नाउ इफ आई अगेन ड्रैग इट, सो इट विल गिव मी बुक केसेस. अगर आप फर्स्ट प्रोडक्ट आईडी के लिए देखें तो आपका सब कैटेगरी क्या है, बुक केसेस. नाउ इफ यू वांट टू, अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ जो फ्यूचर में आपको कंफ्यूजन या एरर आपको फेस ना कर. अब आपने ड्रैग किया, आपको बुक केसेस मिला, बट इफ आई डबल क्लिक ऑन दिस प्लस आइकन, नथिंग विल बी हैपन ऑन माय स्प्रेडशीट. व्हाई? कैन एनीवन टेल मी? हमने डिस्कस किया था कि इफ यू वांट ऑटो फिलिंग इन योर कॉलम, so no need to drag it manually. Come on this plus icon and double click here. Your column will be autofill then. But यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है? Any idea about it? ये वो ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो एज एन स्टूडेंट मैंने भी अपनी लर्निंग में फेस की थी. और ये चीजें मेरी रिजोल्व हुई किस टाइम पर, मुझे किसी मेरे एक्सेल ट्रेनर ने नहीं बताया कि आपको ऐसा होगा, आपको रेफरेंस का कॉन्सेप्ट वहां पर यूज करना होगा. हमने ये सारा लर्निंग खुद से किया है. आपको सब कुछ थाली में स्पून फीडिंग किया कराया जा रहा है. तो ये आपका यहाँ पर क्यों ड्रैग नहीं हो रहा है? बिकॉज जो फॉर्मूला हमने यूज किया है उसका लोकेशन कहाँ है, C3. इफ आई डबल क्लिक हेयर, just a minute. Why it is not happening for other row? Just a minute. देखा, मैंने कहा था ये सारे वो इश्यू है जो सभी ने अपनी लर्निंग में फेस किए हैं, बट हमें किसी ट्रेनर के द्वारा ये चीजें नहीं बताई गई थी. आपने यहाँ पे ड्रैग किया, यहाँ पर आपको वैल्यू मिल रही है, ऑटोफिल ऑप्शन. फॉर्मेटिंग का है, विदाउट फॉर्मेटिंग है, बट हमको क्या चाहिए, फिलिंग चाहिए, बट किसके साथ, फॉर्मूला के साथ. तो आपका ड्रैग करने पर आना चाहिए, बट व्हाई इट विल नॉट कम. B3, C3, C2, D2. Okay, let's cover it in XLOOKUP formula. Okay, then we will discuss it. अब आप पहले मुझे ये बताइए कि आपको ये चीज क्लियर है कि अगर आपको मल्टीपल कॉलम से डाटा एक्सट्रैक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ सिंगल फॉर्मूला, सो यू आर एबल टू एक्सट्रैक्ट दैट. Yes, आपको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, रेफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज करना है. और ये ड्रैगिंग वाला भी कॉन्सेप्ट आप इतना ध्यान में रखिए. मे बी इट्स नॉट हैपन फॉर नाउ, बट
हाउ इट विल वर्क, जहां पर आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आप सोचे कि मैं सिर्फ बुक केसेस पर आके यहाँ पे डबल प्लेस करके मेरी क्या आ जाएगी, फीलिंग्स आ जाएगी, तो क्या करेगा ये वर्क ना, नहीं भी करेगा। बिकॉज क्यों नहीं करता, क्योंकि जो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है वो किस लोकेशन पे किया है, किस लोकेशन पे किया है, यूर C3। ओके, इसका मैं आपको एक्स लुकअप में भी एक रियल यूज केस आपको शो करूंगी। अब एक्स लुकअप फॉर्मूला मे बी आपको इंडेक्स एंड मैच फॉर्मूला टफ लगे, क्योंकि हमने यहाँ पे टोटल कितने फॉर्मूला यूज करे, 3 फॉर्मूलाज। वन इज फॉर वैल्यू, one is for longitude value, another one is for column number। yes, टोटल 3 फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज करे। बट जब आप एक्स लुकअप फंक्शन का यूज देखेंगे, सो इट इज वेरी इजी टू यूज, इजी टू अंडरस्टैंड। एक्स लुकअप इज वेरी इजी फॉर्मूला फॉर यू ऑल। अगर आप एक बार, ये मैं आपको 100% रिटर्न में देती हूँ कि अगर आप एक्स लुकअप फंक्शन सीख लेते हैं तो आप अपनी पूरी इंटायर लाइफ में वी लुकअप, एच लुकअप एंड इंडेक्स एंड मैच फंक्शन का यूज नहीं करेंगे। यू विल नेवर यूज दिस फॉर्मूलाज। मैंने आपको सब स्टार्टिंग में ही ये फॉर्मूला क्यों नहीं बताया, बिकॉज आपका इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज वी लुकअप फॉर्मूला, what is H lookup formula, what is the difference between both the formulas, what is the limitation of VLOOKUP formula, and how we will resolve this issue with another lookup formula. So we have index and match formula for that. So, and one main powerful formula in lookup is X lookup formula. मैम Yes, Saurabh. मैम लेट अस कंसिडर कि और एक हमारा कॉलम को हमें प्रिंट कराना था, मतलब कॉलम को और लेना था, रिटर्न करना था, तो मुझे और एक बार इंडेक्स में मैच वैल्यू डालना पड़ेगा क्या? नहीं, मैच फंक्शन के लिए हमने ऑलरेडी मैच फंक्शन हमने यूज किया, किसके लिए, कॉलम नंबर के लिए। अब जितना भी आपका कॉलम, हम उसको ड्रैग करेंगे। देखो, अगर मेरे पास, आपका कहना है कि अगर मेरे पास एक और कॉलम यहाँ पर हो, कुछ भी एक्स एंड वाई, राइट, जैसे मेरा ई कॉलम में भी मुझे डाटा एक्सेप्ट करना है, तो मैं सेम फॉर्मूला को क्या करूंगी, ड्रैग कर दूंगी ई कॉलम में, तो मेरा रेफरेंस कॉलम रेफरेंस चेंज होके क्या हो जाएगा, कैटेगरी से सब कैटेगरी चले जाएगा। कैटेगरी से सब कैटेगरी, और सब कैटेगरी से ई कॉलम में जो आपका कॉलम नंबर होगा, क्योंकि एरे में तो हमने सारे कॉलम सिलेक्ट किए हैं। अगर यहाँ मैच फॉर्मूला में आप देखें तो मैंने I2 से लेके K2, I2 में क्या है, फर्स्ट कॉलम, देन J सब कैटेगरी, देन K प्रोडक्ट आईडी। अगर मेरे पास और भी डाटा है, और भी कॉलम्स है, तो मैं अपनी रेंज को एक्सपांड कर दूंगी, राइट। सो इट विल ऑटोमेटिकली टेक दैट कॉलम नेम। तो मैम यहाँ डेटा वैलिडेशन का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ना, जैसे अब अभी हम जब सब कैटेगरी निकाल रहे हैं, हम सब कैटेगरी को रेफरेंस का यूज कर रहे हैं। यस, तो अगर फर्नीचर को बुक केस, अगर फर्नीचर का कुछ और रहता तो रेफरेंस तो कुछ और प्रिंट कराया रहता ना, बट प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से तो मुझे कुछ और मिलना चाहिए। नहीं, आप एक बात सोचिए कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट प्लेस करते हैं तो हर प्रोडक्ट का एक यूनिक प्रोडक्ट आईडी होता है। अगर उसका कलर, उसका साइज, सब कुछ अगर सेम है तो कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ता, कोई भी प्रोडक्ट वो हमें ट्रांसपोर्ट कर दे, राइट। अगर साइज सेम है, कलर सेम है, ब्रांड सेम है, तो हमें कुछ मतलब नहीं है कि वो जो प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट किया, या फिर कोई उनके स्टॉक में दूसरा प्रोडक्ट सेम साइज और सेम प्राइस, सेम ब्रांड, सेम कलर का अवेलेबल है, तो वो हमें वो डिस्पैच करे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, राइट। अगर सब कुछ हमें सेम मिल रहा है तो। बट व्हेन वी हैव समथिंग यूनिक इन एनी ऑर्डर, सो उसमें आपका क्या होता है, आपका प्रोडक्ट आईडी यूनिक होता है। अब हमारा जो कॉमन पैरामीटर है वो यूनिक है, प्रोडक्ट आईडी इज यूनिक फॉर एवरी कैटेगरी और सब कैटेगरी। अगर आप Yes. चेक करें तो कैटेगरी में फर्नीचर आपको यहाँ पर भी मिलेगा 6 रो में, बट ये जो कैटेगरी है इसका प्रोडक्ट आईडी जो है, उस प्रोडक्ट आईडी के लिए कौन सा है, सब कैटेगरी टेबल, तो यूनिक हो गया ना। यहाँ तक आपका सेम हो गया, फर्नीचर फर्नीचर, बट आपका सब कैटेगरी
डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट आईडी नंबर पे। इसलिए सौरभ, आप कभी जब डाटा पे काम करोगे, रियल डाटा पे, तो आप वहां पर एक चीज देखोगे कि आपके पास हमेशा एक प्राइमरी की कॉलम होगा। कौन सा कॉलम होगा? हमेशा ये चीज आप रिटर्न में मैं आपको दे सकती हूँ कि वैन एवर यू वर्क ऑन एनी रियल डाटा सेट, तो हमेशा आपके पास क्या होगा? एक प्राइमरी की कॉलम होगा। अब मैं अगर डिटेल में बात करूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी की कॉलम, तो प्राइमरी की Those कॉलम column हम are unique and यूनिक वैल्यू, different, unique value in every row. अगर बाय डिफॉल्ट किसी डाटा में हमारे पास प्राइमरी की कॉलम नहीं भी होता, तो ये हमारा काम है कि उसमें चाहे हम एक सीरियल नंबर, अब सीरियल नंबर यूनिक होता है हर रो में, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो ये हमारा ड्यूटी है कि अगर चांस हमें प्राइमरी की कॉलम नहीं मिला, तो हम उसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करें जिसके बिहाफ पर हम अपनी सर्चिंग कर सकें कि डाटा कितना डुप्लीकेट है, कितना यूनिक है। एक प्रोडक्ट आईडी पे लिए कितना डाटा ट्रांसफर हुआ है, कितना डिस्पैच हुआ है, कितना रिटर्न हुआ है उस प्रोडक्ट आईडी का डाटा। जैसे कि पेन है, पेन का प्रोडक्ट नंबर सेम है। अगर सेलो का ब्रांड है, ब्लू कलर का पेन है, तो सेम प्रोडक्ट आईडी है सेलो पेन का। तो अब सेलो पेन की जो सेल हो रही है वो 100 पर डे हो रही है, 100 आइटम पर डे, और उसका रिटर्न कितना हो रहा है? 20 से 15 डाटा उसका क्या हो रहा है? रिटर्न भी हो रहा है। तो अब वो रिटर्न डाटा हम किसके बिहाफ पर देखेंगे? प्रोडक्ट आईडी के बिहाफ पे ही तो सर्च करेंगे कि इस आईडी का कितना डाटा रिटर्न में आ रहा है। यस, Yes, ma'am. प्राइमरी की कॉलम हमेशा आपको मिलेगा जिसके बिहाफ पर आप ये सारा एनालिसिस कर सकते हो, जिससे आपको कभी ये डाटा वैलिड और डाटा वैलिडेशन का तो इसमें कोई एरर आने का मतलब ही नहीं बनता। डाटा वैलिडेशन का इशू आपको कभी यहाँ पर फेस करने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपके पास प्राइमरी की कॉलम नहीं होता है तो आपका डाटा में एरर आ सकता है कि यू आर नॉट एबल टू गेट योर डाटा एक्यूरेटली। So no need to worry about that. Whenever you working on real data set, you always get one primary key column in your data. Okay. Yes, ma'am. Understood. Okay. Now x lookup formula. अब x lookup formula जैसे मैंने बताया कि आप, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो हम लुकअप फॉर्मूलाज में एक्स लुकअप को बोल सकते हैं कि एक्स लुकअप इज फादर ऑफ योर ऑल द लुकअप फॉर्मूलाज। X lookup is father for your all lookup formulas. आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सिंपली सी इज इक्वल टू एक्स लुकअप। फर्स्ट आर्गुमेंट आपको, why it is not showing argument for that x lookup? ओके, आई विल टेल यू वन मोर थिंग। अगर मुझे ये चीज फेस ना होती अभी तो मैं आपके साथ डिस्कस भी ना कर पाती। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे सिस्टम में कुछ ग्लिच था, कुछ एरर इश्यूज थे, जिसके कारण मुझे अपना सिस्टम सारा क्या करना पड़ा? अपडेट करना पड़ा, रीस्टार्ट करना पड़ा, जिससे मेरा जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ एक्सेल था वो डिलीट होके क्या हो गया? जो एक नॉर्मल वर्जन बाय डिफॉल्ट आपको सिस्टम में मिल जाता है, नाउ आई एम यूजिंग 2019 वर्जन ऑफ एक्सेल, बट XLOOKUP is very advanced formula. So for that we need latest, at least we want 2021 version of Excel for XLOOKUP function. XLOOKUP function is not working in old version. Okay. तो जो अगर आपके 2000, आई एम यूजिंग 2019 वर्जन, और अभी इसी क्लास में मुझे ये एरर, सॉरी, ये इशू फेस हुआ कि some formulas, some advanced formulas will not working for this version 2019. If you want to use advanced functions, so for that at least install 2021 version of Excel in your system. So Saurabh, which version are you using? Ma'am, I am using 2016. In my system also not there.
2016. Okay, Ithina, which version are you using? Anyone using 2021 version of Excel? Otherwise, we are not able to use this XLOOKUP function in our Excel sheet, because that is very powerful formula and very advanced formula of your lookup formula. So उसके लिए requirement है कि at least we have 2021 version of Excel. If you have in your PDF, ma'am, then you can explore on PDF. Maybe that you can know. Okay, in future if you want to practice it, so I have one PDF for that. See, just a minute, I will show you. Okay, that is a PDF for your XLOOKUP function. So see, XLOOKUP function to find things in a table or range by row. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसे अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल डाटा है या फिर आपके पास वर्टिकल डाटा है, दोनों ही केस में आप XLOOKUP फंक्शन के साथ गो ऑन कर सकते हैं. आपको अलग अलग फॉर्मूला का नीड नहीं है जैसे हमें वर्टिकल और XLOOKUP फंक्शन में होता है. XLOOKUP फंक्शन इज कैपेबल फॉर बोथ टाइप्स ऑफ डाटा, for vertical data as well as for horizontal. That is the one benefit of your XLOOKUP function. For example, look up the price, that is the okay syntax. That is the syntax. See, that is the definition, official definition of your XLOOKUP function. The XLOOKUP function searches a range or an array and then returns the item corresponding to the first match it finds. जो फर्स्ट मैच होगा उसको वो आपको रिटर्न में देगा. इफ नो मैच एग्जिस्ट देन XLOOKUP कैन रिटर्न द क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेट मैच. देन सिंटैक्स, सेम सिंटैक्स है. लुकअप वैल्यू जो कॉमन पैरामीटर होगा दैट इज योर लुकअप वैल्यू. लुकअप एरे जो आपकी मास्टर टेबल है वहां पर आपको अवेलेबल होना चाहिए आपका लुकअप एरे. रिटर्न एरे, अब रिटर्न एरे क्या है, जो कॉलम जो डाटा आपको वहां से चाहिए दैट इज योर रिटर्न एरे. सिलेक्ट इट. फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है इफ नॉट फाउंड, कि रिटर्न एरे में अगर कुछ, जैसे आपको वहां पर मेरी सीट में क्या शो हो रहा था, हैज एन एरर. जब हमने इंडेक्स एंड मैच का यूज किया तो आपको वहां शो हुआ था हैज एन ए. But if you do not want to show this has an a error to your client, so that is the flexibility in your XLOOKUP function. You will add your words in within your argument. Not available, value is not available. According to your requirement, you put your words within this argument. जब भी आपको यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ आर्गुमेंट शो होता है दैट्स मीन ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है. अगर आप कुछ वहां पर नहीं डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट वहां पर आपको वो हैज एन या नॉट नल कुछ भी बाय डिफॉल्ट वो आपको कुछ शो करेगा. देन मैच मोड, what you want approximate match or you want exact match. If you want exact match put 0, if you want approximate match put 1. Then search mode, इसमें search mode is very good argument फॉर यू ऑल. सर्च मोड आपका क्या करता है, आपको कुछ ऑप्शंस वहां पर शो करता है. आई विल शो यू. सी दिस टाइप ऑफ ऑप्शन, परफॉर्म ए सर्च स्टार्टिंग इन द फर्स्ट आइटम, दिस इज द डिफॉल्ट. रिवर्स सर्च, अगर आपको स्टार्टिंग से सर्च कराना है तो 1 उसके लिए आपको टाइप करना होगा. अगर आपको रिवर्स सर्च कराना है तो आपको वहां पे -1 पुट करना होगा. बाइनरी सर्च, ऐसे करके वहां पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं सर्च मोड में. सो दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर XLOOKUP फंक्शन. सी वी हैव दिस टेबल. देन व्हाट इज द डायल कोड. ब्राजील के लिए वो सर्च कर रहे हैं तो उन्होंने क्या किया है, F2. F2 क्या है, your lookup value. We are looking for this Brazil dial code. So Brazil is our lookup value. Now lookup array is second argument. अब ब्राजील सारा स्टेट कंट्री का डाटा कहाँ पर अवेलेबल है, इन बी कॉलम. सो B2 B11 यहाँ पर उन्होंने रेंज दिए है rather than कॉलम, उन्होंने रेंज मेंशन की है इन लुकअप एरे. देन थर्ड आर्गुमेंट व्हाट यू वांट. सो यहाँ पर वो किसके लिए क्या सर्च कर रहे हैं, डायल कोड. तो वहां पर उन्होंने डायल कोड के लिए, डायल कोड इज रिटर्न एरे, दे वांट दिस डायल कोड वैल्यू एज एन रिटर्न एरे.
सो फॉर दैट D2 से D11 उन्होंने क्या किया है, रिटर्न एरे किया। बाकी के आपके ऑप्शनल सारे क्या है, ऑप्शनल है। इफ आई शो यू, रिटर्न एरे तक आपके मैंडेटरी है आर्गुमेंट, देन उसके बाद के सारे क्या है, ऑप्शनल है। इफ यू वांट टू पुट पुट, अदरवाइज लीव इट। सो ब्राजील के लिए उसने क्या दे दिया, 55 डायल कोड दे दिया। सो आई थिंक इट इज इजी एज कंपेयर टू योर इंडेक्स एंड मैच। आपको सिंपल 3 आर्गुमेंट, आपको क्या सर्च कर रहे हैं, वो एरे जहां पर आपका डाटा, सर्चिंग डाटा अवेलेबल है, रिटर्न एरे व्हाट यू वांट फ्रॉम योर मास्टर टेबल। सेकंड एग्जांपल आपको दिया है फिर इन्होंने कि अगर आप मल्टीपल डाटा से एक्सट्रैक्ट करते हो डाटा, तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, C5 से D14, C5 से D14 का सारा डाटा सर्च किया है। इफ नॉट फाउंड में उन्होंने क्या डाला है, आईडी नॉट फाउंड। अगर अब आपको ये आईडी आपके यहाँ पर अवेलेबल नहीं मिली, तो उन्होंने वहां पर क्या है, हैज एन एरर ना देके क्या दे रहा है आपको, आईडी नॉट फाउंड, ताकि क्लाइंट इजीली समझ सके कि ये आईडी यहाँ पर मास्टर डाटा में अवेलेबल नहीं है। फिर आपको सर्च मोड का भी यहाँ पर दिया है 1। यहाँ ऐसे आप क्या कर सकते हो, एक्स लुकअप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इफ यू वांट दैट पीडीएफ, आई विल शेयर इट इन योर ग्रुप एज वेल। सो आई होप एक्स लुकअप का आपको, एक्स लुकअप फंक्शन का आपको क्लैरिटी हो गया है कि आपको कैसे यूज करना है। अदरवाइज अगर किसी के सिस्टम में एक्स लुकअप फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है, तो एंड दे आर फेसिंग वी लुकअप लिमिटेशन, so they will use index and match function for that, because index and match function will be work for in every system. Yes, anyone have any doubt till here? Nitish Kumar, any doubt till here? Yes, Ithina, you have any doubt? Yes, ma'am, when we use VLOOKUP, we always use the true or false in our Yes, formula. yes, you will But use in true X, false also. yes, ma'am. But XLOOKUP we don't need. So what is the Sorry, difference? your voice is not clear to me, Ithina. Okay, ma'am, may I audible? You are audible, but your voice is not clear. If you are good, so can you please type in your chat box? Okay, ma'am. Okay. Anyone else? I hope this session is clear to everyone. It's our bad. We are not able to show, I am not able to show you this XLOOKUP function because of the version of Excel. I mean, simple, we said that XLOOKUP is a combination of VLOOKUP and SLOOKUP, no? Yes, in simple language we will say that VLOOKUP, XLOOKUP is combination of VLOOK, but कम्बिनेशन किस टाइप में सौरभ, यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि कम्बिनेशन है कि अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल डाटा है देन वी विल गो विद एक्स लुकअप, वर्टिकल डाटा है देन आल्सो वी विल गो विद एक्स लुकअप। बट आपका लिमिटेशन कवर कर रहा है, अगर आप एक्स लुकअप में अगर आपके पास जो डाटा आपको एक्सट्रैक्ट करना है अगर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होगा, तो your XLOOKUP function is capable for that, rather than VLOOKUP or HLOOKUP function is not capable that for that. That is a one difference between these formulas. Okay. XLOOKUP is working in both, for both the direction, for forward direction as well as for backward direction. Ma'am, then at a single time, it looks like a vertical or it looks like a horizontal. Yes, at a single time, it's only work for as if we are applying for vertical data, it will behave like VLOOKUP. If we are applying on horizontal data, it behaves like your HLOOKUP formula.
In VLOOKUP, we use true and false, but in XLOOKUP, we don't need it. What is the use of true and false? Ithina, it's depend on you. If you want to put 0 or 1, put 0, 1. If you want true false pattern, so put true false. हर फंक्शन का अपना एक आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट का आपको टेंशन लेने का नीड ही नहीं है। जैसा कि आपने स्प्रेडशीट में भी देखा, जब भी आप कोई भी फंक्शन, कोई भी फॉर्मूला आप अपनी स्प्रेडशीट में लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका आर्गुमेंट आपको शो हो जाता है। अगर आपके आर्गुमेंट में 0 और 1 आपको शो हो रहा है तो पुट 0 और 1। अगर आपको वहां पर ट्रू और फॉल्स शो हो रहा है तो पुट ट्रू और फॉल्स। ओके, इट्स डिपेंड ऑन यू or function also. Good. So now I will stop my screen. If anyone have any doubt, so please unmute yourself and let me know. आप सबको समझ आ रहा है जो भी मैं पढ़ाती हूँ? Yes or no? Can you please give me feedback for that? Yes. Okay. What about you, Rajan, Nikhil, Nitish? Nikhil, yes. Okay. सी, अगर कभी भी ऐसा लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको टेंशन लेने का नीड नहीं है। यू अनम्यूट योर सेल्फ एंड लेट मी नो कि मैम हमको समझ नहीं आ रहा, प्लीज रिपीट वंस मोर। ओके, whenever you feel like कि नहीं सर के ऊपर से जा रहा है, so no need to feel shy like कि we will not asking to मैम, मैम क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। अनम्यूट योर सेल्फ एंड लेट अस नो। So that's for all today.